شہریار بادشاہ اور اس کے بھائی کی کہانی۔ غیب کی باتیں تو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن پرانے قصے کہانیوں میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اگلے زمانے میں بنی ساسان کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی حکومت جزائر ہند اور چین تک تھی، اور اس کی فوجوں اور باج گزاروں اور شان و شوکت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ یوں تو دونوں بڑے بہادر اور شہسوار تھے، لیکن بڑا بیٹا شہسواری میں چھوٹے سے بڑھ چڑھ کر تھا۔ کئی ملک اس کی حکومت میں آئے، اور وہ اپنی رعیت کے ساتھ بڑے عدل و انصاف سے پیش آتا تھا، اور اس کی رعایا اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس بادشاہ کا نام شہریار تھا، چھوٹے بھائی کا نام شاہ زمان تھا، اور اس کا ملک سمرقند تھا۔ میں سال تک دونوں بادشاہ اپنے اپنے ملکوں پر نہایت خوشی و خرمی کے ساتھ عادلانہ حکومت کرتے رہے۔ اسی زمانے میں بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ جائے اور اس کے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے آئے۔ وزیر نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور روانہ ہو گیا، اور صحیح و سلامت پہنچ گیا اور چھوٹے بھائی کے پاس باریاب ہو کر اسے بادشاہ کا سلام پہنچایا، اور عرض کی کہ آپ کے بھائی کا آپ سے ملنے کو دل چاہتا ہے، اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ آپ ان سے ملنے کے لیے تشریف لے چلیں۔ بادشاہ نے اسے بصر و چشم منظور کیا اور سفر کی تیاری کرنے لگا، اور خیمے اور اونٹ اور نچر اور خدمتگار اور مددگار سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ اس نے اپنے وزیر کو اپنا قائم مقام بنایا اور اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ آدھی رات کے وقت اسے یاد آیا کہ وہ ایک چیز محل میں بھول آیا ہے، اور پلٹ پڑا۔ جب وہ اپنے محل میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بچھونے میں اس کی بیوی ایک حبشی غلام کو لیے پڑی ہے۔ یہ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اور وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ ابھی تو میں شہر سے نکلا بھی نہیں، اور یہاں ایسا واقعہ پیش آیا۔ اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ ایک مدت تک رہا تو خدا جانے یہ حرام زادی کیا کچھ نہ کر گزرے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی تلوار کھینچی اور دونوں کو اس بچھونے پر قتل کر ڈالا، اور فوراً وہاں سے چل دیا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ الغرض وہ اپنے بھائی کے دارالسلطنت پہنچ گیا، اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اپنے آنے کی خبر بھائی کو بھیجی۔ بھائی اس کے خیر مقدم کے لیے آیا اور اس سے ملا، اور صاحب سلامت کی اور بہت خوش ہوا، اور سارے شہر میں چراغاں کرایا۔ اب دونوں بیٹھ کر خوشی خوشی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے۔ اس وقت شاہ زمان بادشاہ کو اپنی بیوی کا واقعہ یاد آیا، اور وہ دل ہی دل میں کڑنے اور بے چین ہونے لگا، اور اس کا چہرہ فک ہو گیا اور جسم مزہل۔ جب بھائی نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کو خیال ہوا کہ ہو نہ ہو میرے بھائی کو اپنے ملک کے چھوٹنے کا قلق ہے، اس لیے اس کے متعلق پھر اور باتیں نہ کیں۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی میں دیکھتا ہوں کہ تم روز بروز کمزور ہوتے چلے جاتے ہو، اور تمہارے چہرے کا رنگ اڑتا جاتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بھائی میرے دل کے اندر ایک زخم ہے، مگر اپنی بیوی کا واقعہ اس نے بیان نہ کیا۔ بھائی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ شکار کھیلنے چلو تاکہ تمہاری طبیعت ذرا بہل جائے، لیکن اس نے نہ مانا اور وہ اکیلا شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے محل میں چند کھڑکیاں تھیں جو اس کے بھائی کے باغ کی طرف کھلتی تھیں۔ ان میں سے ایک کھڑکی کھلی اور اس میں سے 20 لونڈیاں نکلیں اور 20 غلام، اور ان کے بیچ میں اس کے بھائی کی بیوی تھی جو حسن و جمال میں یکتا تھی۔ جب وہ ایک حوض کے پاس پہنچے تو سب کے سب کپڑے اتار کر ننگے ہو گئے، اور بادشاہ کی بیوی نے پکار کر کہا کہ اے مسعود تو کہاں ہے؟ یہ سن کر ایک حبشی غلام آیا اور اس سے لپٹ گیا، اور وہ اس سے لپٹ گئی، اور دونوں ہم صحبت ہونے لگے۔ دوسرے غلام بھی باقی لونڈیوں کے ساتھ اسی فعل میں مشغول ہو گئے۔ دن نکلے تک یہی بوس و کنار اور ہم صحبتی ہوتی رہی۔ جب بادشاہ کے بھائی نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ واللہ میری مصیبت تو اس مصیبت کا پاسنگ بھی نہیں، اور اس کا غم و غصہ ہوا ہو گیا، اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں نے اس سے بڑھ کر اب تک کوئی بات نہیں دیکھی، اور پھر اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی سفر سے لوٹا اور دونوں میں صاحب سلامت ہوئی۔ شہریار بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا بھائی شاہزمان بادشاہ کا چہرہ بحال نظر آتا ہے، اور سرخ و سفید ہو گیا ہے، اور یا تو پہلے کچھ کھاتا نہ پیتا تھا، اور یا اب وہ بدستور کھانے پینے لگا ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھائی اب تک تمہارا رنگ فت تھا اور چہرہ اترا ہوا تھا، اب تم پھر بحال نظر آتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ رنگ فت ہونے کی وجہ تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن دوبارہ بحال ہو جانے کی وجہ بتانے سے آپ مجھے معاف رکھیں۔
भाई ने कहा, खैर, रंग फिक होने और कमजोरी की वजह पहले बताओ तो सही, ताकि मैं सुनूं। इसने जवाब दिया कि जब आपने अपने वजीर को मेरे बुलाने के लिए भेजा था, तो मैंने सफ़र का सामान तैयार किया और अपने शहर से बाहर आया। उस वक्त मुझे याद आया कि जो हीरा मैं आपके लिए लाने वाला था, उसे अपने महल में भूल आया हूँ। मैं घर वापस गया तो क्या देखता हूँ कि मेरे बिछौने पर एक हबशी गुलाम मेरी बीवी के साथ हम बिस्तर है। मैंने वहीं दोनों को कत्ल कर दिया और रवाना हो गया। अब यहाँ आया हूँ तो वही बात मेरी आंखों के सामने फिर रही है। ये है सबब मेरे चेहरे के रंग उड़ने और कमजोरी का। मगर इस बात से आप मुझे मुआफ रखें कि मैं अपने बहाल होने की वजह आपसे बयान करूं। जब इसके भाई ने उसकी बातें सुने तो कहा कि मैं तुम्हें खुदा की कसम देकर सब कहता हूँ कि दोबारा बहाल होने की वजह भी बताओ। इस पर उसने जो कुछ देखा था कह दिया। शहरयार ने अपने भाई शाहजमान से कहा कि मैं ये माजरा अपनी आंख से देखना चाहता हूँ। शाहजमान ने कहा कि अच्छा, आप ये जाहिर कीजिए कि आप शिकार के लिए जा रहे हैं और मेरे मकान में छप जाइए। इस तरह से आप सब कुछ अपनी आंख से देख लेंगे। बादशाह ने फौरन कोच बोल दिया और खेमे और लश्कर शहर के बाहर निकल आए, और बादशाह भी बाहर आ गया और खेमे के अंदर जा बैठा और अपने नौकरों से कहा कि मेरे पास कोई ना आए। फिर वो भेस बदल कर निकला और इस महल में आया जहां इसका भाई था और इसकी खिड़की में आकर बैठ गया, जिसका दरवाज़ा बाहर बाग की तरफ था। थोड़ी ही देर हुई थी कि लौनडिया और उनकी मालिका गुलामों के साथ आए, और वही कार्रवाई पास से होने लगी जो उसके भाई ने कहा था। ये बातें असर के वक्त तक होती रहीं। जब शहरयार बादशाह ने ये माजरा देखा तो उसके हाथ के तोते उड़ गए और उसने अपने भाई शाहजमान से कहा कि चलो, हम जिस तरह बैठे हैं उठ खड़े हूँ। मुल्क और दौलत की किया परवाह, चलो देखें कि दुनिया में कोई और भी है जिसके साथ ऐसा वाकया पेश आया हो, वरना ऐसे जीने से तो मरना बेहतर है। दोनों भाई महल के चोर दरवाजे से बाहर आए, और कई दिन और कई रात चलने के बाद समंदर के किनारे एक सब्ज़ाजार में पहुंचे जहां एक चश्मा बह रहा था और बीच में एक दरख्त था। इस चश्मे से पानी पिया और बैठकर सताने लगे। जब एक खा दिन गुजर चुका तो वो क्या देखते हैं कि समंदर में तलातिम उठा और इसमें से एक सियाह सुतून सा ऊपर की तरफ बढ़ा। जब इन्होंने ये देखा तो दोनों भाई डर के मारे दरख्त के ऊपर चढ़ गए, जो बहुत ऊंचा था, और देखने लगे कि अब क्या होता है। वो क्या देखते हैं कि एक लंबा चौड़ा बड़ी और चपटी खोपड़ी वाला देव सर पर एक संदूक लिए खुशकी में आ निकला और उसी दरख्त के पास आ पहुंचा जिस पर ये दोनों बैठे हुए थे। वहां बैठकर उसने संदूक खोला और इसमें से एक बड़ा प्याला निकाला। फिर इसने वो प्याला खोला और इसमें से एक नौजवान लड़की निकली, जिसका बदन सिडोल और जिसके चेहरे के आगे सूरज मात था, जैसा कि किसी शायरा ने कहा है। अंधेरे में वो इस तरह चमकती है कि गोया दिन निकल आया है, और अपने ऊपर दरख्तों को रोशन कर देती है। आफताब को इसके नूर से रोशनी पहुंचती है, और जब वो बाहर निकलकर जलवा अफरोज होती है तो चांद तक शर्मा जाता है। जब वो पर्दा उठाकर सामने आती है तो सारी खुदाई इसके सामने सर के बल गिर पड़ती है। जब इसके हुस्न के सब्ज़ाजार पर उसके नाज़वू अदा की बिजलियां कूदती हैं तो लोगों की आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। देव ने इस लड़की की तरफ देखकर कहा कि ए शरीफ ज़ादियों की सरताज, जिसको मैं निकाह की रात उठा लाया हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ज़रा सो लूँ। ये कहकर वो लड़की के जानों पर सर रख कर सो गया। लड़की ने सर ऊपर उठाया तो उन दोनों बादशाहों को दरख्त के ऊपर बैठा देखा। ये देखकर उसने देव के सर को अपने जानू पर से उठाकर रख दिया और खुद दरख्त के नीचे आकर खड़ी हो गई और इशारे से कहने लगी, जमीन पर उतर आओ और देव से ना डरो। इन्होंने जवाब दिया कि खुदा के वास्ते हमें बदकारी से मुआफ रखो। लड़की ने कहा कि अगर तुम ना उतरोगे तो मैं देव को जगाकर तुम्हारे पीछे लगा दूंगी, और वो बुरी तरह से तुम्हें मौत के घाट उतारेगा। डर के मारे वो दोनों उतरकर इसके पास आ गए। वो करीब आई और कहा कि आओ, मेरे ऊपर आओ, वरना मैं अभी देव को जगाती हूँ। देव के डर से शहरयार ने अपने भाई शाहजमान से कहा कि भाई उसका कहना मान लो। इसने जवाब दिया कि नहीं, पहले आप शुरू कीजिए। वो यही बात कर रहे थे कि पहले कौन इससे सोहबत करे कि लड़की ने कहा कि मैं देखती हूँ कि तुम दोनों नखरे कर रहे हो, और अगर तुमने फौरन वो फेल शुरू ना किया तो मैं अभी देव को जगा दूंगी। देव के डर के मारे दोनों ने उसके साथ सोहबत की। जब दोनों फारिग हो चुके
तो उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली जिसमें एक हार की शक्ल में 570 अंगूठियां परोई हुई थीं, और उनसे कहा कि तुम जानते हो कि ये क्या है? इन्होंने कहा नहीं। इसने कहा कि ये उन लोगों की अंगूठियां हैं जो देव की मौजूदगी में मुझसे हम सोहबत हुए हैं। तुम दोनों भाई भी अपनी अपनी अंगूठी मुझे दे दो। इन्होंने भी अंगूठियां उतारकर उसे दे दें। इसने कहा कि सुनो, ये देव मुझे निकाह की रात उठा लाया है और एक प्याले में बंद करके इस संदूक में रखा है, और इस संदूक में 7 कुफ्ल लगाकर मुझे गहरे और मौजज़न समंदर की अथाह गहराइयों में पोशीदा रखता है, मगर उसे ये खबर नहीं कि हम औरतें अगर कुछ चाहें तो दुनिया की कोई चीज़ हमें रोक नहीं सकती। जैसा कि किसी शायर ने कहा है, औरतों की तरफ से मुतमईन होकर ना बैठो और उनके वादों पर भरोसा मत करो। उनकी खुशी और नाखुशी उनकी फर्जों के साथ वाबस्ता है। वो झूठी मोहब्बत का इजहार करती हैं और बेवफाई उनका पेशा है। हज़रत यूसुफ के किस्से से इबरत हासिल करो। इसमें तुम्हें उनकी बाज़ साजिशों का पता लगेगा। क्या तुम्हें बावा आदम का हाल मालूम नहीं कि वो इन्हीं की वजह से निकाले गए? इस लड़की की ये बातें सुनकर दोनों बादशाह शशदर रह गए, और एक ने दूसरे से कहा कि देखो, ये तो देव है, लेकिन जो माजरा इसके साथ हुआ वो हम में से किसी के साथ भी ना हुआ। ऐसी बात तो अब तक दुनिया में किसी के साथ भी पेश ना आई होगी। वो फौरन उल्टे पांव खड़े और शहरयार बादशाह के दारुसल्तनत में पहुंचे। शहरयार अपने महल में दाखिल हुआ और अपनी बीवी और उन सब लोंडियों और गुलामों की गर्दन मार दी। इसके बाद इसका ये दस्तूर रहा कि वो हर रात एक बाकरा से यानी कुंवारी से हम सोहबत करता और फिर इसको कत्ल कर डालता था। ये माजरा 3 साल तक जारी रहा, यहाँ तक कि लोग अपनी अपनी बेटियां लेकर भाग गए और इस शहर में कोई नौजवान लड़की बाकी ना रही जो हम सहबती के काबिल हो। बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि वो बदस्तूर हर रोज एक लड़की लाए। वजीर गया और बहुत जुस्तजू की, लेकिन उसे कोई लड़की ना मिली। आखिरकार वो मगमूम होकर घर आया और दिल ही दिल में बादशाह की तरफ से बहुत खौफ था। इस वजीर की 2 लड़कियां थीं। बड़ी का नाम शहरजाद था और छोटी का नाम दुनियाजाद। बड़ी ने तारीख और पुराने बादशाहों के हालात और गुज़श्ता कौमों के वाक़यात के मुताल्लिक बहुत सी किताबें पढ़ी थीं। कहा जाता है कि इसके कुतुब खाने में गुज़श्ता कौमों और पुराने बादशाहों और शायरों के मुताल्लिक 1000 किताबें मौजूद थीं। अपने बाप की ये हालत देखकर उसने कहा कि आप क्यों इस कदर परेशान नज़र आते हैं और किस चीज़ ने आपको गमगीन कर दिया है? उसके मुताल्लिक किसी शायर का कौल है, जो शख्स गमगीन हो इससे कह दो गम हमेशा नहीं रहता। जिस तरह की खुशी फ़ानी है, गम भी है। जब वज़ीर ने अपनी बेटी को ये कहते सुना तो उसने सारा माजरा बयान कर दिया जो उसके और बादशाह के दरमियान पेश आया था। लड़की ने कहा कि अब्बा जान, मैं आपको खुदा की कसम देती हूँ कि आप मेरी शादी बादशाह के साथ कर दीजिए। या तो मैं जिंदा बच जाऊंगी और या मुसलमान बच्चियों पर निसार हो जाऊंगी और उनको इस बादशाह के पंजे से निजात दूंगी। बाप ने कहा कि मैं तुझे खुदा की कसम देता हूँ कि ऐसी बातों को अपने दिल से निकाल डाल। इसने कहा कि ये तो होकर रहेगा। बाप ने कहा कि कहीं तेरा वही हाल ना हो जो गधे और बैल का किसान के साथ हुआ था। इसने कहा कि वो किया था।